Good morning students. Welcome again. Today we will start our chapter, our new chapter, chapter 5th from the Vistas book, Evans Tries All. The writer of this chapter is Colin Dexter. Now we will start the major characters of this chapter. So first character is Evans. Evans is a pleasant young man, not violent, suffered from Kyphlomatic is a disease in that the person is stealing things. Also known as prison breaker. Why? Because he escaped from prison thrice, means 3 times. Sharp-witted means highly intelligent. Next character is the second character we discussed here. The governor, average intelligence but overconfident. Poor judge of character. Next, Jackson is the third character here. Jackson, senior prison officer, kind-hearted, not intelligent, and gullible. Gullible means होता है क्या? भोला भाला. Stephen is newly created in police department. Take orders without thinking. And next, fifth character is Reverend McLary, supposed to be supervisor Evans German O level. He is paused here. Not actually he is supervised, but he is paused here. Reverend McLary is supervised Evans tries O level exam. These are the some major characters of the story. Evans tries O level. By these characters, we can easily understand the complete summary of this chapter. Let's start the introduction. This story, Evans Tries O level, is an interesting story depicting how a prisoner called James Evans befooled all the officers of the prison. Means ये जो स्टोरी है इवांस ट्राइज ओ लेवल वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और किस तरह से एक प्रिजनर जिसका नाम है जेम्स इवांस वो सभी ऑफिसर्स को मूर्ख बनाता है. डेपिक्ट मींस होता है शो करना. ऑफ द प्रिजन यानी कि जेल के सभी ऑफिसर्स को मूर्ख बनाता है टू एस्केप अंडर ए वेल लेड आउट प्लान कि किस तरह से वो वहां से बहुत ही अच्छे तरीके से स्मार्टली बनाए हुए प्लान के थ्रू वहां से निकल जाता है. डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स ऑफ द प्रिजन अथॉरिटीज. डिस्पाइट मींस बावजूद कि बहुत अच्छे एफर्ट करने के बाद किसके द्वारा अच्छे एफर्ट किए गए? प्रिजन ऑफिसर्स के द्वारा जो बहुत ही अच्छे एफर्ट किए गए बट इवांस इज एबल टू एस्केप. लेकिन इवांस जो है वो वहां से भागने में कामयाब रहा. In this battle of wits means क्या होता है? इंटेलिजेंसी, बुद्धि यानी कि बुद्धि की जो यहाँ पे लड़ाई थी between him जो प्रोनाउन है वो यूज हुआ है जेम्स इवांस के लिए कि बुद्धि की जो लड़ाई थी इवांस और किसके बीच में? प्रिजन अथॉरिटीज जेल के जो अधिकारी हैं उनके बीच में. he has lost laugh तो लास्ट लाफ तो अंत में जीत किसकी होती है? जेम्स इवांस की होती है. तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या जो हमारा चैप्टर है उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. So, should criminals in the prison be given the opportunity of learning and education? तो सबसे पहले चैप्टर के शुरुआत में ही इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है क्या जेल में रहने वाले जो लोग हैं जो प्रिजनर्स हैं उनको कुछ सीखने का उनको पढ़ाई के अवसर देने चाहिए. तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो रीडर से किया जाता है किसके द्वारा? कॉलिन डेक्स्टर के द्वारा. नेक्स्ट ड्रामेटाइज पर्सोना. कुछ नाटक के कुछ जो इस प्ले में जो कुछ भी कैरेक्टर्स यूज हुए हैं तो उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं जो हम इससे पहले हम कर चुके हैं डिटेल में. तो एक बार मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ. द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, James Evans a prisoner here. Next Mr. Jackson a prisoner officer. Next one is Mr. Stephen a prisoner officer. Next the Reverend S. McLary an invigilator. Mr. Carter
detective superintendent, and next one is Mr. Bell, detective chief inspector. Next we will start. It was in early March when the secretary of the examination board received the call from the Oxford prison कि ये मार्च के शुरुआत की बात है जब जो एग्जाम बोर्ड के सचिव का ऑक्सफोर्ड जेल से उसको एक कॉल आता है। किसको कॉल आता है? तो एग्जाम बोर्ड के सेक्रेटरी के पास में कॉल आता है, और कॉल कहां से आता है? ऑक्सफोर्ड प्रिजन से कॉल आता है। नेक्स्ट, इट इज ए स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट, कि थोड़ी सी अजीब प्रार्थना यहाँ पे थी। क्या? कि द गवर्नर बट आई डू नॉट सी why we should not try to help just the one fellow you say। अब जो कॉल में कहा गया कि गवर्नर परंतु मैं सहायता ना करने की कोशिश का कोई कारण नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि बस एक आदमी जो कि गवर्नर के द्वारा कहा गया है, सिर्फ एक आदमी को एग्जाम दिलाने की बात थी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मुझे कहीं भी उसको मना करना चाहिए। नेक्स्ट, इज एनी दैट्स इट chap called Evans. Chap called Evans started night classes in Oxford O-level German last September. Says he is that need to get some sort of academic qualifications. वही जिसका नाम क्या है? इवांस नाम का चैप होता है बॉय। तो इवांस नाम का एक लड़का है जिसको के एग्जाम दिलाने हैं, और जिसने कि पिछले सितंबर में ओ लेवल जर्मन की जो अपनी क्लासेस हैं वो शुरू की थी। और आगे जो गवर्नर है वो बताता है कि वे किसी प्रकार की भी एजुकेशन पाने के लिए इच्छुक था। नेक्स्ट, इज ही एनी गुड, और क्या वह सब कुछ अच्छा है? He was the only one in the class, so you can say he is an individual tuition all the time. Really would have cost him a packet if he had an outsider. कि उसके बाद गवर्नर उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ सब कुछ सही है। क्यों? क्योंकि वो अपनी क्लास में यानी कि ओ लेवल की डिग्री पाने वाला सिर्फ एक मात्र है, और आप कह सकते हैं कि हमेशा ही, क्योंकि अकेला है तो उसको जो है पर्सनली ट्यूशन जो है वो दिया जाता रहा है। और क्या कि वुड हैव कॉस्ट हिम, कि यदि वो जेल से बाहर होता तो उसको ये जो ओ लेवल की स्टडी है ये बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ती। ही वो वेल लेट्स गिव हिम ए चांस शैल वी, और उसके बाद कहा जाता है क्या कि अच्छा चलिए हम उसे एक मौका दे देते हैं। किस लिए? ताकि वो अपने ओ लेवल का एग्जाम जो है वो अच्छे से क्वालिफाई कर सके। दिस जॉली काइंड ऑफ यू, व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसीजर नाउ, कि ये बात यह आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी कि यदि आप यह बताइए कि क्या ये सही तरीका क्या है एग्जाम दिलवाने का। नेक्स्ट, oh don't worry about that, I will be sending you all the forms and stuff। उसके बाद जो सेक्रेटरी है बोर्ड का वो कहता है क्या कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सारा का सारा आपका जो फॉर्म्स वगैरह जो भी सामान है, जो भी फॉर्म या जो भी दूसरा सामान है जो एग्जाम देने के लिए चाहिए, मैं सारा का सारा वहीं पे भिजवा दूंगा। एंड व्हाट इज नेम यू से, और उसके बाद जो बोर्ड का सेक्रेटरी होता है वो बोलता है, एग्जामिनेशन बोर्ड सेक्रेटरी जो होता है तो वो बोलता है क्या कि आपने क्या नाम बताया था अभी लड़के का? इवांस, शायद आपने इवांस बताया था, जेम्स रॉडरिक इवांस। इट साउंडेड रादर ग्रैंड। उसके बाद जो उसने कहा कि ये कुछ जो है नाम बहुत ही शानदार लगता है। नाम क्या है? जेम्स रॉडरिक इवांस, यानी कि सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत ही कोई रेपुटेड पर्सन हो, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, just one thing, Governor. He is not a violent sort of fellow. Is he? उसके बाद जो सेक्रेटरी होता है एग्जामिनेशन बोर्ड का, वो गवर्नर से, जो ऑक्सफोर्ड प्रिजन का गवर्नर होता है, उससे क्वेश्चन करता है कि क्या वो हिंसात्मक व्यक्ति तो नहीं है ना? तो ये क्वेश्चन वो करता है कौन? सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड।
I do not want to know his criminal record or anything like that, but मुझे उसके किसी भी तरह की क्रिमिनल रिकॉर्ड में कोई भी जो है इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसकी क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन ये उसी तरह की कोई बात है, मगर बस इतना ही वो बोलता है, तभी जो गवर्नर है उसकी बात को बीच में काट देता है। नो, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस। गवर्नर उसको इंफॉर्मेशन देता है कि नहीं, उसके लिए वायलेंस का कोई रिकॉर्ड उसका नहीं है, यानी कि आज तक उसने जेल में कभी किसी तरह की कोई हिंसा नहीं की। नेक्स्ट, क्वाइट अ प्लीजेंट शॉर्ट ऑफ चैप, दे टेल मी, और जेल के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि वो बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज प्रकार का एक पर्सन है, यानी कि व्यक्ति है। बिट ए कार्ड रियली, कुछ मजाक किस्म का वाकई। वन ऑफ द स्टार्स ऑफ द क्रिसमस कंसर्न, कि हम कह सकते हैं कि क्रिसमस सभा का एक खास आकर्षण है, यानी कि क्रिसमस के ऊपर काफी एक अच्छा रंग जमाया जाता है, किसके द्वारा? इवांस के द्वारा। नेक्स्ट, imitations you know short of thing might awkward stuff, उसके बाद वो कहता है कि कुछ जो है नकल करने वाला है, आप ऐसी बातों को जानते ही हैं, जैसे might यार वुड जो करता है, बिल्कुल इस तरह से वो उसकी नकल करता है क्रिसमस के ऊपर। नो, ही इज जस्ट ए कॉगेंशियल कैलोमेटिक, दैट्स ऑल। उसके बाद वो कहता है कि नहीं, उसे केवल सिर्फ क्या है, कैलोमेटिक मींस क्या होता है, एक स्टेलिंग की जो डिजीज है, यानी चोरी करने की सिर्फ एक बीमारी है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी कि इवांस जो है वो ना वायलेंट है, ना किसी को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाता है, बस वो बार बार जेल सिर्फ इसलिए आता है, क्यों? क्योंकि उसे जो है चोरी करने वाली एक बीमारी है, इसलिए वो बार बार चोरी करता है और पकड़ा जाता है और जेल में आ जाता है। And the governor was tempted to add something else, but he thought better of it. गवर्नर यहाँ पे कुछ और भी कहना चाहता था, मगर उसने उसे कुछ नए कहना ही बेहतर समझा। नेक्स्ट, but he thought better, he had look after the particular side of things himself, और इस विशेष बात को उसने अपने आप में ही देख लेगा, ऐसा उसने सोचा कि सेक्रेटरी जो है वो अपने आप ही चीजों को देख लेगा, सिर्फ इतना बताना ही उसके लिए बेहतर रहेगा, किसके लिए? गवर्नर के लिए। इसलिए बस इतना बता के वो वहां पे चुप हो जाता है। Persuasively said the secretary, you can arrange a room where, और जो सेक्रेटरी है वो कौन से सेक्रेटरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम दो ही पर्सन की बात कर रहे हैं। पहला जो पर्सन है वो है गवर्नर, और गवर्नर कहाँ का है? ऑक्सफोर्ड प्रिजन का गवर्नर है। और सेकंड जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सेकंड हम बात कर रहे हैं किसकी? सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड। तो दो पर्सन्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड है वो यहाँ पे पूछता है, क्या यहाँ पे पूछता है? तो वो यहाँ पे कहता है कि भाई क्या आप इवांस के लिए क्या कर पाएंगे, एक अच्छे रूम का इंतजाम आप कर पाएंगे? मेरा ऐसा विचार है कि उनके लिए आप अलग से एक कमरे की व्यवस्था कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, ही इज इन हिज सेल ऑन हिज ओन। और उसके बाद जो गवर्नर है एक्सपोर्ट प्रिजन का, तो यहाँ पे वो कहता है, क्या कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास अलग से एक कमरा है, अलग से एक कोठरी है। नेक्स्ट, इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शन ही कैन सिट द एग्जाम इन देयर, और अगर आपको कोई समस्या ना हो तो वो वहीं बैठकर एग्जाम दे सकता है। That's fine। तो जो सेक्रेटरी है एग्जामिनेशन बोर्ड का वो कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है, and we could easily get one of the parsons from Saint Mary Max to invigilate if that's कि हम क्या करेंगे? सेंट मैरी मैक्स से किसी भी पार्सन मीन्स क्या होता है? जो चर्च में जो प्रिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं, तो उनको हम यहाँ पे बुला लेंगे ताकि आसानी से इन्विजिलेट किया जा सके। किसको? इवांस को। मीन्स वो कहते हैं कि हम इन्विजिलेटर के रूप में एक पर्सन को बुला लेंगे और इसलिए उसका एग्जाम
इवांस का जो है वो कंडक्ट करवा देंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और इससे आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। और जितना अभी तक बताया गया है, स्पेशली जो इंट्रोडक्शन है और जो आपका चैप्टर है, स्पेशली जो कैरेक्टर्स हैं उनको आप ध्यान से रीड करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।